So we are into introduction of shares, two shares. Now this part of Companies Act, the last phase, it's hardly 6 pages. I think I'll be finishing it in 10 to 15 minutes. And we are finishing Companies Act here. Let's start. What do you mean by share? Share means the share in the share capital of a company and includes stock. The word share actually means what is your portion of share in the capital of the company. That is called share. If you have a pizza with you and of that pizza one piece belongs to you, then you can say I have one share out of 6 pieces of pizza. वैसे ही पूरे कंपनी के कैपिटल में आपका शेयर कितना है उसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं. There's a word called stock. We have seen this in Sales of Goods Act. Stock means bundle of shares. 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर को मिला के जब एक चीज बनती है उसे हम स्टॉक कहते हैं. अगर हमारे पास 500 के 10 नोट है, we said it's 5,000 rupees, right? और 5 नोट्स है, we say it's 10,000 rupees. और उसके बदले अगर हमें 5 2000 के नोट दिए गए, इट्स वन एंड द सेम स्टफ. वैसे ही 10 शेयर के बदले एक स्टॉक दे दो तो बात तो एक ही है, वो एक्चुअली शेयर्स ही है. The normal meaning of the word share is it is a smallest unit in the which the capital of a company is divided. ठीक है. Coming to classifications, authorized capital is the maximum capital what company can issue. मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको दिखाया रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 1500 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹10 each. A company cannot issue capital exceeding the authorized capital. In case a company intends to issue capital exceeding the capital, it has to first increase authorized capital. The amount of authorized capital is stated in the capital clause of memorandum. हमने देखा था. The authorized capital is also called as registered capital or nominal capital. In short, if you want to write one line, it is this: maximum capital that company can raise. और ये कहाँ पे होता है, ये आपके मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होता है. Issued capital, it means a capital which has been for the timing issued by the company. Subscribed is the capital which is subscribed by the members. Called up is the portion of capital which has been called for payment. And paid up is the amount paid among that. If example ले लूँ, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, और उसमें से 4 रुपए कॉल किए और उसमें से 10,000 लोगों ने पे किए, 2,000 ने पे नहीं किए, तो when it has been called for 10,000 shares of ₹4 each, we can say 40,000 rupees is called up. उसमें से जिन्होंने पे किए वो बन जाएगा पेड अप, और जिन्होंने पे नहीं किए उसे हम क्या कहते हैं, कॉज इन एरियर्स कहते हैं. This is something which I am not focusing in detail because I feel it's quite simple. Authorized capital, then your issued capital, subscribed capital, called up and paid up. Then comes into kinds of capital. ये कहता है there are two kinds of share capital. One is preference share capital and second is equity capital. Equity capital there are two. One is with voting rights and number two is with differential rights as to dividend और voting. अब आपने जो सीखा है वो है प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स में आज की दुनिया में दो टाइप की इक्विटी है. एक रेगुलर इक्विटी जहां पे आपको वोटिंग राइट मिलता है, और होता है एक डिफरेंशियल राइट. डिफरेंशियल राइट में क्या होता है गाइस कि आपका जो शेयर का वोटिंग पावर है वो थोड़ा सा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर पे 1 वोट. नॉर्मली 5 शेयर पे 5 वोट होते हैं, यहाँ पे 5 शेयर पे 1 वोट होगा. 10 शेयर पे 2 वोट होंगे. मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, या तो आपका वोटिंग पावर कम हो जाएगा, इसको कहेंगे डिफरेंशियल वोटिंग, या तो आपका डिविडेंड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. जैसे कि इफ एवरीवन गेट्स डिविडेंड ऑफ ₹1 यू विल गेट 1.1. इफ एवरीवन गेट्स ₹1 यू मे गेट 0.9. तो ये क्या है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल वन. तो इंडिया के अंदर देयर आर कंपनीज हु हैव इशूड डिफरेंशियल राइट्स. आई विल शो यू हियर. मैं नेट पे सर्च करता हूं. If you see here, Tata Motors India is the company which has issued shares with differential rights. Now I'll just search it more. If you see here,
DVR इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब टाटा मोटर्स के भी मार्केट में दो शेयर्स है, एक रेगुलर शेयर और एक DVR वाला शेयर. लेट मी टेक यू इन मोर डिटेल हियर. DVR stands for differential voting right. Tata Motor DVR has 10% voting as compared to ordinary share. याद आया आपको, मैंने कहा था वोटिंग कम हो सकते हैं. यहाँ पे 10 शेयर पे एक वोटिंग है DVR में. नॉर्मल शेयर में एक शेयर पे एक वोटिंग होता है, यहाँ पे 10 शेयर पे एक वोटिंग है. द कॉन्सेप्ट इज, ये थोड़ा और डिले जाता है, बट आई डोंट वांट टू टेक इट टू लॉन्ग इन फाउंडेशन. ये समझना कि जब कंपनी आपको लालच देती है कि आपसे वोटिंग हम छीन लेंगे, क्योंकि आप वैसे भी छोटे आदमी हो, आपके शेयर से कुछ होने वाला नहीं है फर्क वोटिंग पे, तो हार्डली हैव सम 100,000 शेयर्स. हम आपके पास से शेयर्स देंगे, आपका वोटिंग ले लेंगे, उसके बदले हम आपको डिविडेंड ज़्यादा दे देंगे. Let me just search more to you all. If you search on online वेबसाइट पे आपको टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR एक ही कंपनी के दो शेयर्स मिलेंगे. एक ऐसा शेयर जो रेगुलर शेयर है जिसमें हर शेयर पे एक वोट मिलेगा और इक्वल डिविडेंड मिलेगा. एक दूसरा शेयर जिसके अंदर आपको वोटिंग नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उसका रेट थोड़ा सस्ता होगा. इफ यू नो दिस नेम, Chunjunwala, even he had DVRs with him. If you want more details to this, you can search his website, how normal shares are differing from DVR shares. If you observe here, देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स का प्राइस कितना था रेगुलर शेयर का, 260 रुपीज. DVR का शेयर का प्राइस क्या है, 142. It is quite clear that your DVR shares are at a cheaper rate as compared to your regular share. If you ask me कि सर विच शेयर्स टू बी बॉट फॉर, DVR लेना चाहिए कि कुछ और लेना चाहिए, तो इसका आंसर समझने के लिए आपको सी एंटर तक पहुंचना पड़ेगा कि विच इज बेटर फॉर यू. तो यस, हाउ डू आई बाय हार्ड फाइनली सर? शेयर कैपिटल्स आर ऑफ टू काइंड्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. Preference capital whereby equity has voting rights or with differential rights regarding voting or dividend. Preference capital, what do you mean by preference capital sir? Preference capital मतलब ऐसा capital जहां पे you will have preference. Preference मतलब क्या, priority over what, as to payment of dividend and repayment of capital. It means that preference shareholders को priority मिलेगा और equity. For what? Whenever dividends declared, it will be first given to preference holders, and whenever company gets closed down and it has been paid, so first equity holders will not be paid. First preference will be paid, and after that equity holders shall be paid. I hope that is very clear to every one of you. Next आता है यहाँ पे preference. This is something optional to every one of you. I just kept it for your C enter concept purpose. You have heard about participating preference shares, जहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट करते प्रॉफिट्स में भी और पार्टिसिपेट करते हैं वाइंडिंग अप के वक्त ऑन एसेट्स भी, मतलब दे गेट मोर देन द कैपिटल एंड दे गेट मोर देन द डिविडेंड. उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. सर आर दे स्टिल प्रेफरेंस शेयर्स इफ दे शेयर प्रॉफिट्स? आंसर इज यस. Even if they share profits, they are still preference shares. The concept is whenever they get preference now, they will be called as preference shares. Even if they get share in profits, even if they get more of assets than their capital, but if they get preference over equity, they are called preference shares. And you know what? This is what is the meaning of equity capital. जो प्रेफरेंस नहीं है वही इक्विटी है, जो प्रेफरेंस नहीं है वही इक्विटी है. तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इक्विटी क्या है, जो प्रेफरेंस नहीं. प्रेफरेंस क्या है?
जहां पे प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस देगा डिविडेंड पे, जो प्रेफरेंस देगा कैपिटल रिपेमेंट में, भले या प्रॉफिट शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसे क्या माना जाएगा, उसे प्रेफरेंस कैपिटल माना जाएगा. दो यू विल हैव अ क्वेश्चन, explain the kinds of share capital. You will be explaining preference capital and equity capital here. And what is preference capital? You have seen it: priority or profits and dividend, sharing of profits or not, and what is not preference will be equity. Now the last question, incorporation of company. थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है, आपको मैं प्रेफरेबली कहूँगा इसे बाय हार्ट करना. एक ही चीज़ है जिसे बाय हार्ट करनी, वो है ये. नॉर्मली कहता है पब्लिक कंपनी हैज 7 members and a private company has 2 members. Whereby you can form a company and OPC has 1 member only. Standard 3. ठीक है. How do you incorporate a company? Section 7 of the Act says that this is a procedure to form a company and the rules regarding the same. For the registration of company, following documents and information are required to be filled with registrar within whose jurisdiction the office is situated. ये डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को देने हैं. आज के ज़माने में वो ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं, आपको सबमिट करना नहीं पड़ता फिजिकली. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने, आइए देखते हैं. First they say you have to give memorandum articles of the company duly signed by subscribers. MOA and AOA of the company duly signed by subscribers. Document number 1. You know MOA, you know what is AOA. ये बनाओ, subscriber will sign it and you have to submit it to ROC. यहाँ पे हम अभी अपलोड करते हैं सॉफ्ट कॉपी पे. नंबर 2 आता है declaration to by person who is engaged in formation, that is CA, CS, cost accountant or advocate, and by a person named in articles as directors or manager of the company, that all the requirements of the act and the rules inspector of registration of company have complied with. ये कह रहा है कि जो CA या CS जो कंपनी बना रहा है, आपको हेल्प कर रहा है प्रोफेशनल, और आपके आर्टिकल्स में जो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे या मैनेजर, उनका एक डिक्लेरेशन चाहिए कि हम कंपनी बना रहे हैं और कंपनी को बनाने में जो भी लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए वो हमने सब का सब कंप्लाई किया है. दैट इज द बेंचमार्क हियर. अ डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स. नाउ सब्सक्राइबर्स जो है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया रिलायंस के सब्सक्राइबर्स के पहले के नाम. उनको क्या कहना है? ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वो कभी जेल में नहीं गया है, वो कभी कोई ऑफेंस नहीं किया है कंपनी के फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट में. वो कभी गिल्टी नहीं है फ्रॉड का या मिसफीसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ फॉर ड्यूरिंग लास्ट 5 years. कानून के नॉन कंप्लायंस में बाय वे ऑफ फ्रॉड कोई भी सब्सक्राइबर फंसा नहीं है, वो कभी भी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है. मतलब हमारी कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स है वो साफ सुथरे लोग हैं. वो ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया था कंपनीज एक्ट में, जिन्होंने कुछ नॉन कंप्लायंस किया था, जिन्होंने इंटेंशनली कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की थी. ऐसे लोग नहीं है. ऐसा आपको डिक्लेयर करके बोलना है कि मैं कंपनी का सब्सक्राइबर हूं लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं लास्ट 5 years कभी भी इन्वॉल्व नहीं था ऐसे कोई गलत काम में. आगे, all the documents with the registrar containing information that is correct and complete and true to the best of knowledge and belief. इनको ये भी लिख के देना है कि हमने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए वो सब करेक्ट है, ट्रू है, उसमें कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट हमने यूज किया नहीं है. उसके बाद ये कहता है आपको आपका एड्रेस देना है जो आप यूज करोगे फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन जब तक आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाती. जनरली वो कब बनती है? कंपनी फॉर्म होने के बाद. कंपनी फॉर्म होने से पहले आपको केयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है कि अभी के लिए आप इस एड्रेस पे फॉलो करना, कंपनी बनने के बाद हम नया एड्रेस देंगे. The particulars including name, surname, family name, address, nationality of every subscriber, along with identity proof, and in case of company's body subscribers body corporate, such details as may be prescribed. ये कहना चाह रहा है कि हर सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वो देना पड़ेगा. अगर वो कंपनी है जो कंपनी मेंबर बन रही है तो उसका प्रूफ जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा. फिर ये कहता है अगर रजिस्ट्रार को लगा डॉक्यूमेंट जो फाइल हुए वो सब ठीक है तो वो क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
देगा। आइए मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा सकता हूँ यहाँ पे। स्टैंडर्डली आप इसको देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया भी था। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इमेज मिल जाएगी डायरेक्टली, यही है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपको मिलता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। I hope you just have to see the image to get that feel. Hold on. मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप आपने ये क्लियरली देखा होगा। इट्स जस्ट अ रैंडम पीस। व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? तो आरओसी क्या करेगी? वंस आरओसी इज सेटिस्फाइड, आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी। अब ये कहता है जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये है CIN। इससे कंपनी को आइडेंटिटी मिलती है। दिस इज अ कोड, जैसे आधार नंबर होता है वैसे इनका कोड नंबर हो जाएगा। एंड दिस इज द बेसिस ऑन विच कंपनी गेट्स इट्स इन नेम, दैट इज ऑन सर्टिफिकेट, सॉरी, दैट इज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN। यही नंबर आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होगा, CIN ऑफ द कंपनी, CIN ऑफ द कंपनी। ये कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए ना हम लोगों को, आरओसी को, वो सब आपको सेव करके रखने हैं, संभाल के रखने हैं जब तक आपकी कंपनी बंद ना हो जाए तब तक। यू हैव टू मेंटेन दैट, यू हैव टू प्रिजर्व दैट। फिर ये कहता है अगर ऐसा पता चला कि आपकी कंपनी ने जो, आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो फॉल्स थे, इनकरेक्ट थे, आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्रेस की थी, छुपाई थी, तो आपके ऊपर सब सब लोगों पे जिन्होंने गलत किया उनको क्या होगा? उन पे लायबिलिटी आएगी फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ये सेक्शन जो है दैट इज बीन लर्न इन इंटर एंड फाइनल, मैं आपको इतना कहूंगा, इट इज कॉल्ड पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। दिस सेक्शन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ नंबर याद रखना है कि अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उनकी पनिशमेंट जो है वो कहाँ लिखी है? सेक्शन 447 में लिखी है। पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 3 इयर्स की जेल, मैक्सिमम 10 इयर्स की जेल। मिनिमम 3 इयर्स की जेल और मैक्सिमम 10 इयर्स की जेल होगी प्लस पेनल्टी। बट आपको याद नहीं रखना है, उसके लिए आपको पास होके इंटर पहुंचना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है, किसी ने भी फ्रॉड किया तो उस पर सजा क्या होगी? 447 में। ये कब बोला होता है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर ये कहता है अगर ये बात इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चली, कंपनी फॉर्म हो गई, आरओसी के ध्यान में गया ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है, कंपनी फॉर्म होने के बाद, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चला कि कंपनी जो फॉर्म हुई है वो तो फॉल्स डेटा से हुई थी, वापस सेम कॉन्सेप्ट है, वापस रिलायबल अंडर व्हाट? 447। लेकिन एनसीएलटी करेगा क्या पता है? ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये है कोर्ट जो कंपनीज एक्ट के मैटर सॉल्व करती है। शुद्ध भाषा में बोलूँ तो ये कोर्ट के बदले की अथॉरिटी है जो कंपनी के मैटर्स को हैंडल करती है। उसको हम कहते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये क्या करेगा? जैसे ही उन्हें समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया था, एनसीएलटी क्या कर सकती है? ऑर्डर पास कर सकती है कि कंपनी का मैच अब हम करेंगे, एनसीएलटी करेगा। या फिर वो कह देगी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो अनलिमिटेड थी ना, अब क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, आपको फंसा देंगे, यू भी लाए तो आपने फ्रॉड किया है, आपका नाम कंपनी निकाल देगी उसके रिकॉर्ड्स में से, आई एम सॉरी, आपका नाम आरओसी हटा देगी उसके रिकॉर्ड से, या फिर आपकी कंपनी को वाइंड अप करवा देगी। ऐसा कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। कौन? एनसीएलटी। अगर उन्हें पता चला कि आपका काम जो हो रहा था
वहाँ पे कंपनी जो फॉर्म हुई वो फॉल्स स्टेटमेंट से हुई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट से हुई, सप्रेसिंग एनी मिडल फैक्ट से हुई, तो हम आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को बंद करवा सकते हैं, कंपनी का नाम हटा सकते हैं, या फिर मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले वो आपको मौका देंगे सुनने का। इसको कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको मौका दिया जाएगा आपको सुनने का, और फिर भी हमें समझ में आए कि आपने कुछ गलत किया है, तो हम आपको यहाँ से क्या कर देंगे, आपको यहाँ से लायबिलिटी एलिमिनेट करके कंपनी को बंद करवा सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है ना आज के ज़माने में, वो क्या है, आज के ज़माने में जो ऑनलाइन फॉर्मेट है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस। ये शब्द याद रखना। द MCA वेबसाइट है, MCA मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स has taken active initiatives for ease of business. In a step towards the same, MCA has simplified the process of filing forms for incorporation of companies through SPICE, Simplified Proforma for Incorporating Companies Electronically. ये आपको ऐड करना है लास्ट में। ये है प्रैक्टिकल सिस्टम कोड जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब आता हूँ वापस इस इनकॉर्पोरेशन पे। पहले कहता है आपको MOA AOA सबमिट करने हैं ROC को। वो सबमिशन करते वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन होने चाहिए सब्सक्राइबर्स से। फिर कहता है ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसे, CA जो कंपनी बना रहे उसे, और उसके आर्टिकल्स को। उसके अंदर क्या होना लिखा होना चाहिए, उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि हमने जो चीज़ें कंप्लायंस जरूरत थी वो सब कंप्लायंस 6 से किया है, और हर एक लॉ का एक्टिवली कंप्लायंस किया है। फिर एक डिक्लेरेशन देना है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है और हमारे जो डायरेक्टर्स है, पहले डायरेक्टर्स, वो लोग कभी भी कोई गलत काम में कन्विक्ट नहीं हुए थे, लास्ट 5 सालों में उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, ऐसा एक डिक्लेरेशन शपथ लेनी पड़ेगी। फिर कहता है डॉक्यूमेंट जो फाइल किए गए हमारे से वो सब सही है, हमारे हिसाब से कोई कुछ गलत लिखा नहीं है। फिर उन्होंने कहा एड्रेस देना है, और हमें प्रूफ देने हैं हमारे डायरेक्टर्स के, सब्सक्राइबर्स के, जिसके अंदर नाम, एड्रेस, प्रूफ, आइडेंटिटी, ये सब दिया होगा। फाइनली ये कहता है हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा ROC से, अगर हमने सब सही लिखा होगा तो। उसके साथ हमें CI नंबर मिल जाएगा, और हमें ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। फिर ये कहता है अगर आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन गलत दिया है तो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी 447 की। अगर बाद में पता चला फिर भी लायबिलिटी आएगी 447 की, और आपको NCLT कंपनी को बंद करवा सकती है, स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपकी बात सुनी जाएगी, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना। एंड हियर वी फिनिश ऑफ आवर कंपनीज एक्ट। स्पाइस करके ऑनलाइन फॉर्मेट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। फ्रेंड्स प्लीज, दिस इज द 4th एलिमेंट ऑफ योर कंपनीज एक्ट। 4 वीडियोज नहीं, वीडियोज 5 है, इसमें से एक वीडियो जो सिंपल रखा है मैंने, जस्ट टू एक्सप्लेन यू MOA AOA। विल स्टार्ट विद पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट in this phase. LLP will be a 1 hour topic which we will not take it now, we'll take it after your all 4 Q&As gets over.